हेलो एवरीवन, गेट 2024 इज नाउ ओवर। हम लोग अब उम्मीद करते हैं कि आप गेट 2025 और 2026 में संग्राम मचा के आएंगे। इसके लिए इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपके सामने हैं। वी ऑल विल हेल्प यू टू अचीव दिस गोल ऑफ क्रैकिंग द गेट इन 2025 एंड 2026। सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है एक लर्नर के कि गेट एग्जाम हम क्यों दें, वाई टू गिव द गेट एग्जाम। और गेट के लिए बोला जाता है इट इज अ गेटवे फॉर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज। गेट एग्जाम देने से आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को क्रैक कर सकते हैं। जैसे यू कैन गो फॉर दी हायर स्टडीज, आप पीएसयूज में रिक्रूट हो सकते हैं। गेट का स्कोर काफी गवर्नमेंट एजेंसीज कंसीडर करती हैं अपने प्लेसमेंट के लिए, अपने रिक्रूटमेंट के लिए। कहने का मतलब यह है कि एक ही एग्जाम के स्कोर के बिहाफ पे सेवरल अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल फॉर यू टू अवेल। टू हेल्प यू इन दिस, आपके इस गोल को अचीव करने के लिए वी ऑल आर हियर। ये सेशन उन लोगों के लिए है जो आने वाले 2 सालों में गेट को टारगेट कर रहे हैं। तो जैसा कि सर ने बोला कि वी आर गोइंग टू लॉन्च 2 बैचेस फॉर 2025 एंड 2026, दैट इज उम्मीद बैच एंड संग्राम बैच। आप साफ देख सकते हो कि संग्राम बैच 2026 एस्पिरेंट वालों के लिए और उम्मीद बैच 2025 एस्पिरेंट्स वालों के लिए। नाउ if I look at the benefits, जैसा कि सर ने बोला कि if you go for the gate, you will be getting the multiple opportunities, not only in the PSUs but all the other sectors जहां पे आपको गेट के स्कोर वैलिड होता है। जैसे आप IITs, IIScs, NITs यहां जा सकते हो। साथ ही साथ DRDO, बार्क, इसरो, इन सब में भी आप जाने का आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है। एंड द मोस्ट ऑफ द PSUs आपको यहाँ पे अवेल करते हैं। साथ ही साथ मेरे दोस्त, आप जब आप गेट का पेपर लिखते हो, जब उसकी तैयारी करते हो, तो आपको एक बात और बता दें कि यही कंटेंट के साथ आप और भी एग्जाम्स लिख सकते हैं। ना मूविंग टू द नेक्स्ट, अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा केपी सर को आए और आपको गेट का कैलेंडर बताओ, गेट का पैटर्न क्या होता है वो आपको समझाए। So GATE exam is going to be, notification is going to be coming out by June or July of the current year, and registration form will come September, and exam is going to be on February first week or second week, and final result is coming on March, and most of your admissions are going to be takes place in the month of June or July for MTech, and PSU also comes notification from March to go on forward. So many PSUs will give you the notification. When you come regarding GATE exam structure, GATE exam is a single exam. Generally some exams, some tests will be 2 stage, 3 stage, like stage 1, stage 2 and interview, but GATE exam is just a single stage exam. It is a 3 hours examination, 65 questions and 100 marks. It carry 1 mark questions 30 marks, 2 marks questions 35, 70 marks. And here we are having 3 types of questions. MCQs, multiple choice question, where you can select only one option, and a negative marking will be there. For 1 mark question, 1/3 negative marking, 2 marks question, 2/3 negative marking will be there. So you need to check the question properly and give the answer. Then coming to next type, that is NAT, numerical answer type. Just it is like a fill in the blank, but you can give digits, numbers only, not theory. And then multiple select questions. You can choose more than one option. It may be ABC, ACD, ABCD, like that. So you need a deep conceptual knowledge to crack such kind of MSQs. Nowadays, when we observe the pattern of GATE examination, year to year number of MSQs go on increasing. So you have to know deep concepts to solve such kind of MSQ questions. But advantage over here, NAT and MSQs does not carry any negative marking. So guesswork, or you can take some chance or risk also in such kind of questions. So going over to RP sir. Yeah. So you know the gate pattern and what are all the dates and what will be there in the gate examination, right? So what part we need to prepare? We just observe this syllabus, comprehensive syllabus for this gate you are having. So we'll be going to cover full syllabus, and there are structured courses you can have will be which are planned to crack the gate examination, right? So that you need not worry about the planning, right? We will be planning and we'll be getting you through, right? So we can strengthen your technical knowledge so that you will not be, even if you are an average student also, right? You will be able to crack the gate rank, and you can get good opportunity after that through MTech or PSUs, whatever it is, right? And so here, where to attend these classes? You can attend these classes on website of Unacademy and Unacademy Learners app also. You can get all these things. And so there will be
test series also, right? Why this test series is very important? Because you know the pattern, then how to attempt the gate and how to behave in the examination, so that you'll be giving trials, right? So by means of this test series, so that you'll be writing this exam for many number of times, then you'll be capable of writing the gate examination properly without any tension and without any anxiety. So these are all सो यहाँ पर आप यदि 2025 की तैयारी करना चाहते हैं या 2026 की तैयारी करना चाहते हैं तो पहले तो 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए बात करेंगे। गेट ईएसी पीयूसीस के लिए उम्मीद बैच अनअकैडमी यहाँ पर लेकर आ रहा है और ये बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग बाय जसपाल सर और बिल्डिंग मटेरियल बाय कृष्ण प्रकाश सर के साथ में। आप लोग इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। गेट की भी तैयारी होगी, इंजीनियरिंग सर्विसेज की भी तैयारी होगी और पीएसयूज की भी तैयारी होगी। आपके सभी सब्जेक्ट्स जो होंगे लाइव फॉर्म में डिटेल्ड में आपको पूरे तरीके से कंप्लीट कराए जाएंगे। सभी प्रकार के एग्जाम्स के आपको पीवाईक्यूज कराए जाते हैं, उनके बेस्ड कन्वेंशनल क्वेश्चंस यदि होते हैं तो वो करवाए जाते हैं और इंडिया के टॉप चेहरे आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं पढ़ाते हुए, तो बिल्कुल आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप 2026 की तैयारी करना चाहते हैं तो बैच अवेलेबल है, संग्राम बैच। ये भी 9 फेब से स्टार्ट हो रहा है विद द सेम सब्जेक्ट्स विद द सेम एजुकेटर, तो इसमें भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं। तो सर तो सर अब बात करते हैं अपने बैच के शेड्यूल का। जो मैं जानता हूं कि अगर कोई बच्चा तैयारी करता है तो सबसे पहला उसका क्वेश्चन यही होता है, जब पहला क्लास होता है तो पहला वो सर आपका सारा सिलेबस कब खत्म होगा या सब्जेक्ट कब खत्म होगा। तो डिटेल्ड वे में आपके सारे सब्जेक्ट्स के बारे में यहाँ बताया हुआ है, जहां पे आप देख सकते हो कि टेंटेटिव आपको सर सब्जेक्ट्स का कब वो स्टार्ट हो रहा है कब वो खत्म हो रहा है वो आपको बता रहे हैं। जैसे इरिगेशन हो गया, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जियोटेक, स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से आप देख रहे हो पूरा ऑर्डर नवंबर 2024 में आपका जो लास्ट सब्जेक्ट होगा जो दिसंबर में खत्म होगा। तो पूरा सिलेबस आपको पूरा फॉर्म में दिया हुआ है, जहां पे जो भी आप टीचर्स अभी आप देख रहे हो उन्हीं में से कोई ना कोई टीचर मिलके आपको सब्जेक्ट्स करवा रहे होंगे, राइट। तो दिस इज द प्योर शेड्यूल फॉर योर उम्मीद बैच जो 2025 के लिए आ रहा है। और सर नेक्स्ट स्लाइड पाएंगे जो संग्राम बैच है जो 2026 के लिए है, तो वो भी आप देख रहे हो कि अक्टूबर 2025 तक आपका वो पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बाय द डिफरेंट बेस्ट टीचर्स ऑफ द कंट्री, जो अभी आप अनअकैडमी पे कंटिन्यूस मिलेगा आपको इन द बैचेस। अब अगर बात करते हैं सब्जेक्ट वेटेज का तो स्ट्रक्चर एनालिसिस आप देख सकते हो दैट इज ऑफ 5 to 8%, इरिगेशन 2 to 3%। अगर हम बात कर रहे हैं मोस्ट वेटेड सब्जेक्ट दैट इज जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, इस बार भी आप देखे हो 13 से 14% का वेटेज रहा है। एंड देयर आफ्टर एनवायरमेंट फॉलोड बाय द योर ट्रांसपोर्टेशन, ये आपका कोर में बात होता है। अगर हम बात करते हैं मैथ्स एंड एप्टी तो दोनों मिला के 28% होता है। तो मैं चाहूंगा गुरुपाल सर आए और आगे लेके चले सेशन को। तो यहाँ पर आपके पास 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन होते हैं, प्लस और आइकॉनिक। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अमन सर, हम थोड़ा आगे चलें और बताएं कि भाई स्टूडेंट के मन में आता है कि सर क्लासेस में मिलने क्या वाला है और कैसे होगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जैसे यहाँ पर दिख रहा है जसपाल सर पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट अपना डाउट भी पूछ रहे हैं, साथ में सर क्वेश्चन कराते हुए इंटरेक्शन प्रॉपर कर रहे हैं। यहां पर हम लोग करते क्या है, सपोज करिए कोई स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट को पूछना है कुछ डाउट तो कैसे वो पूछ सकता है, तो भाई वो कमेंट कर सकता है, ठीक है। अब आप देखिए कि और क्या इंटरेक्शन यहां पर हो रहा है। तो आपके पास यहां पर दिख रहा है पोलिंग फैसिलिटी है। सर ये क्या हो रहा है, मान लीजिए कि हमने कंसेप्ट करा, कंसेप्ट कराने के बाद में अब आपको हमने बोला कि चलिए अब क्वेश्चन आप बना के दिखाइए। तो इतना जबरदस्त एनवायरनमेंट यहां पर क्रिएट होता है। और एक याद रखिएगा, एक चीज है, संस्कृत में कहा गया है कि सत्संगति किम न करोति, तो यहां पर पूरा का पूरा संगत का असर वाली बात है। अब बात आ जाती है सर हम अपना डाउट कैसे पूछेंगे। तो पीछे आपको एक वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है बॉस, रेज योर हैंड। मतलब क्या करना है, कभी भी जैसे जब भी आप क्लास में अगर सर से डाउट पूछना चाहते हैं 2 तरीका हो सकता है। पहला आपने कमेंट किया, डाउट पूछा, ठीक है। अब एक माइंड में आया सर मुझे क्लियर हो रहा है बट मैंने कल रात को एक क्वेश्चन देखा था, अब उसका डाउट कैसे पूछूं, वो तो क्लास में नहीं है क्वेश्चन। आप वहां पर उस क्वेश्चन का फोटो भेज सकते हो, आप उस क्वेश्चन की पिक क्लिक करके उसको डाल दीजिए। और सर 1 सेकंड बैक करेंगे, यहां पर जैसे कि दिख रहा है, जैसे ये एग्जैक्टली स्लाइड दिख रही है वैसे ही आपके पास वो स्लाइड पहुंच जाएगी। अब आपको लग रहा है नहीं मुझे बात करनी है, तो क्या था पीछे, क्या था, रेज योर हैंड। आप अपना हाथ ऊपर करेंगे और उस फीचर से आप 1-to-1 एजुकेटर से बात कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फीचर, तो यहां पर आ जाएंगे हमारे अमन सर। हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो जैसा कि सर ने आपको बताया अनअकैडमी पे 2 तरह के प्लान अवेलेबल हैं, सब्सक्रिप्शन प्लान, एक आइकॉनिक है एक प्लस है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप लाइव क्लास देख सकते हो जो टॉप एजुकेटर के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। आप पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, रेज अ हैंड का फीचर आप यूज कर सकते हो।
लेकिन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का प्लान थोड़ा ज्यादा है। तो ये क्यों है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आइकॉनिक फीचर में आपको प्रायोरिटी दिया जाता है। जैसे आप लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं और अगर आपने ऑलरेडी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लिया है तो आपके डाउट को आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा। यानी कि सारे लर्नर्स अगर डाउट पूछते हैं तो अगर आपने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लिया है तो आपका डाउट पहले डिस्कस किया जाएगा ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस। तो ये आपको सबसे बड़ा बेनिफिट हो गया कि आपके डाउट डिस्कस हो जाएंगे। नेक्स्ट जो होता है वो मेंटरशिप प्रोग्राम, यानी कि जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक मेंटर का, जो कि आपको टाइम टू टाइम गाइड करें, आपके जो जर्नी है उसमें आपको हमेशा हेल्प करें। कि कभी कभी आप लोग ये भी कंफ्यूज रहते हैं कि किस क्वेश्चन किस सब्जेक्ट को कैसे प्रिपरेशन करना है, किस टीचर से पढ़ना है, वो सारा प्लान भी हम लोगों ने बताया। लेकिन अगर तब भी कुछ कंफ्यूजन रहता है तो आप मेंटर से बात कर सकते हो, स्लॉट आप बुक कर सकते हैं कि क्या सब स्लॉट है, किस टाइमिंग पे आप उनसे बात कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कितने देर की बात करनी है, तो आप उस तरह से आप स्लॉट फिक्स कर सकते हैं, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, और आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग टाइम भी बुक कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें सबसे अच्छा फीचर्स है, जैसे अगर मान लीजिए आप ऑफलाइन बैच पहले ज्वाइन करते थे तो ऑफलाइन क्यों ज्वाइन करते हो कि पीयर ग्रुप के लिए, तो यहां भी उस तरह का इन्वायरमेंट दिया गया है आपको कि जैसे आप मान लीजिए 5-6 लर्नर हैं, 5-6 फ्रेंड एक साथ प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसका आप एक अलग से ग्रुप बना सकते हो और उसमें भी कंपीट कर सकते हो कि एक दिन में किसने कितना क्वेश्चन सॉल्व किया, किसने कितना वॉच मिनट है। तो ये सारा चीज भी आप यहाँ पे कर सकते हैं जब आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं। और सबसे जरूरी है कि जब आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको घर पे बुक भी डिलीवर किया जाता है। जैसे आपका सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है तो ये सारे बुक्स आपको डिलीवर किए जाएंगे विद इन 15 डेज। आपको एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा, आप उस गूगल फॉर्म में आप अपना एड्रेस फिलअप कीजिएगा तो 15 दिन में ये सारे बुक आपके घर पे डिलीवर कर दिए जाएंगे। तो ये सारे फीचर्स हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस के बारे में। ओवर टू यू जसपाल सर। चलो, सो नेक्स्ट जब हम प्रिपरेशन करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि प्रिपरेशन करने के बाद आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये पता करने के लिए हमें टेस्ट देना पड़ता है। सो ऑन आवर प्लेटफॉर्म वी हैव द बेस्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज अवेलेबल व्हिच इज विराट टेस्ट सीरीज व्हिच इज क्यूरेटेड बाय टॉप मोस्ट एजुकेटर्स विच आर अवेलेबल ऑन आवर प्लेटफॉर्म। जो लेवल है क्वेश्चंस का वो गेट के पार है या उससे भी अच्छे लेवल के सवाल है, ताकि आपको रियल टाइम इन्वायरमेंट मिल पाए या आइडिया लग पाए किस तरह के सवाल गेट एग्जाम में एक्चुअली आते हैं। तो इफ यू गिव दिस टेस्ट सीरीज इट विल बी रियली हेल्पफुल टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। आपका जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज करने में काफी हेल्प करती है हमारी ये टेस्ट सीरीज। नेक्स्ट, as you know that all the top educators are available on our platform. I'll be taking a few subjects. इसके बाद हमारे पास हैं NVL के सर, he has taken more than 200 batches for GATE and EAC. काफी सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं, एजुकेशन आइकन अवार्ड, आइकन ऑफ एशिया, बेस्ट टीचर अवार्ड, 17 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। तो कहने का मतलब है बेस्ट पूल ऑफ द एजुकेटर्स इज अवेलेबल ऑन आवर प्लेटफॉर्म। देन वी हैव अभिषेक सर, ही सेलेक्टेड इन RVNL, देन ESC 2015 में स्कोर इनका 637 था। देन ही हैज ट्रेन्ड मोर देन 50,000 aspirants for different competitive examination. Then we have राजेंद्र प्रसाद सर, गेट और ESC की फैकल्टी हैं पिछले 10 सालों से। गेट 2009 में AIR है 179। ही इज ऑल्सो सेलेक्टेड एज AEE इन इरिगेशन डिपार्टमेंट। देन वी हैव अमित सर, गोल्ड मेडलिस्ट हैं स्ट्रक्चर के अंदर। जितने भी टॉपिक है स्ट्रक्चर के इन डिटेल एनालिसिस मिलेगी आपको, उनकी RCC हो, स्टील हो, SOM हो, स्ट्रक्चर हो। तो जो सब्जेक्ट जिनसे डर लगता है बच्चों को वो आपके स्ट्रेंथन कराएंगे अमित सर। देन ही हैज नंबर ऑफ पब्लिकेशन इन डिफरेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल्स। तो कहने का मतलब है बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग है स्ट्रक्चर के टॉपिक्स की। तो ये जो पोर्शन है आपका काफी स्ट्रांग होगा हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। देन वी हैव उमा सर, 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं गेट और ESC एस्पिरेंट्स को। देन वी हैव गुरुपाल सर, टीचिंग गेट एंड JEE मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड फ्रॉम मोर देन 13 ईयर्स नाउ। टॉप एजुकेटर है गेट और ESC के, डबल ग्रेजुएटेड है, BSc मैथमेटिक्स, BE M.Tech कर रखी है, काफी अवार्ड्स मिले उन्हें और गेट भी क्वालिफाई किया हुआ है। देन वी हैव अमन सर, IITian है, 6 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, एप्टीट्यूड पढ़ाएंगे आपको। ही हैज क्रैक गेट सेवरल टाइम्स, टॉप एजुकेटर हैं गेट और ESC के, काफी अवार्ड्स भी मिल रखे हैं। तो कहने का मतलब है जो बेस्ट पूल ऑफ एजुकेटर्स है दैट इज अवेलेबल ऑन आवर प्लेटफॉर्म। जो प्लेटफॉर्म है काफी सारे एस्पिरेंट्स यूज कर रहे हैं, टेस्टिमोनियल आपके सामने है। पिछले काफी सालों से गेट और ESC के जितने भी टॉपर्स हैं वो सारे प्लस प्लेटफॉर्म और आइकॉनिक प्लेटफॉर्म को यूज करके हुए ही निकले हैं। तो टेस्टिमनी फॉर ऑल दोस टॉपर्स इज अवेलेबल हियर। ओवर टू यू अभिषेक सर। सो जैसा कि सर ने बोला कि यू हैव द बेस्ट पूल ऑफ द टीचर्स ऑन द प्लेटफॉर्म, और अभी आपके लिए नया बैच भी आ रहा है। तो यार ऑब्वियस सी बात है, जब नया बैच आता है तो बच्चे बोलते हैं सर कि कुछ तो डिस्काउंट होना चाहिए, कुछ तो ऑफर होना चाहिए, सो दैट वी स्टार्ट। तो अभी आपके लिए फ्लैट 50% ऑफ मिल रहा है। तो आपको जो भी आपके एजुकेटर्स पसंद है, करस्पॉन्डिंगली यू कैन अप्लाई द कोड एंड गेट द ऑफर। तो ये आपको दोनों उम्मीद बैच और आपके जो संग्राम बैच है दोनों में अवेलेबल है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं
and don't forget you offer limited time के लिए. Do use your favorite educators code and join. तो अभी आप देख रहे हो बहुत कम फीस, अगर मैं 12 मंथ की फीस बोल रही हूँ, रफली 27,999, जो मैं मानता हूं कि अभी तक लास्ट 1 ईयर में देखा हूं सबसे कम देखा गया है, राइट. सो अब आपको पता है कि DSAI की टीम अभी नई ऐड हुई है, तो उनके भी नए बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि सिविल वाले सेकंड पेपर DSAI के थ्रू जान चाहते हो, दे कैन गो विद दिस, और आपके पास नए बैचेस अवेलेबल है. यू कैन यूज आवर कोड एंड गेट द एडमिशन. तो राहुल सर स्टार्ट करेंगे विद द प्रोबेबिलिटी, तो आपको मैथ्स में भी हेल्पफुल हो जाएगा, राइट. सो दैट्स ऑल फ्रॉम द बैचेस. आप अगेन फ्लैट 50% ऑफ है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो विद द DS and AI. तो लास्ट वर्ड सर. So as you all know, Unacademy is known for the achievements that they have done in the last 4 to 5 years. जो अभी हम करेंटली बात करें, जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का बहुत अच्छे लेवल से गया है, एंड विद द टीचर्स दैट वी आर हैविंग, वी विल इंश्योर कि वो क्वालिटी हम कंटिन्यूअस डिलीवर करते रहे और आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करे. सो लेट्स क्रैक इट.